Good afternoon, students. My name is Dr. Kauravi Shaha, Government Dungar College, Department of Geography. Last week we were discussing on approaches to the study of human geography. In this topic, there are two main divisions, that is traditional approach and contemporary approach. In traditional approaches, we have seen that there are 5 divisions: systematic approach, regional approach, historical approach, environmentalistic approach, and possibilistic approach. And the second division is contemporary approaches. These have also 5 divisions, that is ecological approach, spatial approach, or spatial or locational approach, behavioral approach, humanistic approach, and welfare approach. So today we will discuss on contemporary approaches. The first one is ecological approach. Some geographers consider human geography as human ecology and stress on the ecological approach, which is concerned with the vast man-environment interacting system. मानव एवं पर्यावरण के अंदर के अंतर संबंध की जो उपागम है, अंतर संबंध से बने हुए जो उपागम है, दैट इज इकोलॉजिकल बा पारिस्थितिकी उपागम है. Barrows was a pioneer and declared that geography is the science of human ecology. Human ecology is a subfield of ecology. Human ecology is concerned with the application of ecological concepts to the study of the relations between people and their physical and cultural environment. So there is a relation between people, मानव एवं मानव की चारों तरफ जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण है, वही है ह्यूमन इकोलॉजी. चॉर्ले हैगरस्ट्रैंड, उन लोगों ने दे हैव डिस्क्राइब्ड on human ecology by ecological approach to the human geography. इकोलॉजिकल अप्रोच हिंदी में जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी उपागम, मानव भूगोल का अध्ययन पारिस्थितिकी और इकोलॉजी के दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है. मानवीय एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंध हैं इसी अप्रोच में. सेकेंड अप्रोच इज स्पेशियल और लोकेशनल अप्रोच. स्पेशियल और लोकेशनल अप्रोच, द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन लोकेशनल एनालिसिस. द क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक जो विधियाँ हैं वो किस तरह से अप्लाई हुआ है. तो द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन लोकेशनल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेशियल एनालिसिस. सो दैट spatial or locational approach is treated as quantitative theoretical approach. Ackerman considered the simpler forms of statistical aids have characterized geographic distribution analysis in the past. The role of a space as a fundamental variable in human geography. Hagerstrand attempted to study the process of innovation डिफ्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स. तो स्पेशियल और लोकेशनल अप्रोच में हमें मैथमेटिकल बा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की जो यूज़ होता है. द रोल ऑफ स्पेस एज ए फंडामेंटल वेरिएबल इन ह्यूमन ज्योग्राफी. द गोल ऑफ स्पेशियल एनालिसिस इज टू बिल्ड एक्यूरेट जनरलाइजेशंस बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस. स्पेशियल एनालिसिस बा स्थानिक विश्लेषण उपागम, किसी तथ्य की स्थिति संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या हो, मानव अधिवास बा सेटलमेंट, इंडस्ट्री बा उद्योग आदि के भौगोलिक वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की व्याख्या किया जाता है. इस व्याख्या करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटेटिव व मात्रात्मक व स्टैटिस्टिकल व सांख्यिकी विधियों की हेल्प लेना पड़ता है. थर्ड अप्रोच इज बिहेवियरल अप्रोच. बिहेवियरल अप्रोच अथवा आचरणजन्य उपगम. बिहेवियरल अप्रोच to the study of human geography was adopted by geographers as a part of the movement towards behavioralism in geography. Its main
इसका मेन फोकस क्या है? इट्स मेन फोकस इज दैट पीपल आर नॉट सिंपली पैसिव एजेंट इन देयर डीलिंग्स विद द वर्ल्ड। पृथ्वी के साथ, पूरी पृथ्वी के साथ उसकी जो संबंध है उसमें सिर्फ मानव ऐसा ही नहीं है जो प्रकृति से जो मिल रहा है वो प्रकृति जिस तरह से उसके ऊपर क्रिया कर रहा है वही होता है। दे ऑर्गेनाइज, बट दे ऑर्गेनाइज देयर परसेप्शंस, उनकी एक परसेप्शंस है, उनकी थॉट्स है, बिलीव्स है, into meaningful form. They organize their perceptions, thoughts and beliefs into meaningful form. William Kirk introduced the term behavioral environment in 1951. Behavioral geography was beginning to surface in the 1960s. The aspects of behavioral analysis that was adopted by geographers during the period was the concept of mental map or the geographers of the mind. Significant contributors of this field are Gould and White, Downs and Stray. बिहेवियरल ज्योग्राफी व आचरणजन्य उपागम वर्तमान समय में भूगोल के अध्ययन हेतु मनुष्य के आचरणजन्य व्यवहार व बिहेवियरल अप्रोच को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि, उसके समूहगत मानदंड, सामाजिक आवश्यकताएं आदि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ही उनकी आर्थिक अपेक्षा। सिर्फ आर्थिक अपेक्षाओं की नहीं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ व कितनी इनकम कर रहे हैं इंसान वही नहीं है, उसके जो व्यक्तिगत रुचि होती हैं व उसकी विशेष है, डिज़ायर्स हैं व उसकी एक क्वालिटी है, उसकी नीड्स हैं, इन सब को भी मान्यता दिया गया है ज्योग्राफी में। मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों से उसके क्रियाकलापों का भौगोलिक प्रतिरूप प्रभावित होता है। ये जो अप्रोच है इसी को आचरणजन्य उपागम व बिहेवियरल अप्रोच कहा जाता है। नेक्स्ट अप्रोच इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी distinguished by the central and active role it gives to human awareness and human agency, human consciousness and human creativity. It is an expansive view of what the human is and can do. मानव क्या कर सकते, मानव क्या है और मानव क्या कर सकते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, उसकी अवेयरनेस कितनी है। The principal aim of modern humanism in geography is the reconciliation of social science and man. The recent humanistic approach include the philosophies of idealism, phenomenology and existentialism. Relf, Relf introduced the phenomenological approach. Tuan also advocated phenomenological approach. Relf, Tuan इन लोगों ने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में कहा है। नेक्स्ट अप्रोच इज वेलफेयर अप्रोच बा जन कल्याण परक उपागम। वेलफेयर अप्रोच emphasizes questions of inequality. जहाँ inequality है, समानता नहीं है, असमानता है, वहाँ पे वेलफेयर अप्रोच की बात आती है। The welfare approach emerged from the radical reaction to the quantitative and model building emphasis of the 1960s under quantitative revolution, which was thought to be insufficiently concerned with contemporary social problems. अगर हम क्वांटिटेटिव व मॉडल बिल्डिंग की बात करें, उसी से कोई व्याख्या करने जाएं तो सारी व्याख्याएं पूरा नहीं हो पाते। जहाँ कुछ सोशल प्रॉब्लम्स है, उन सारे सोशल प्रॉब्लम्स को हम मात्रात्मक विधियों के द्वारा जहाँ पूरा नहीं कर पाते हैं व्याख्याओं की। The 1970s saw a major redirection of human geography towards welfare issues such as poverty, hunger, crime, discrimination, and access to social services, as for example, health, education. This is a major shift from narrow economic criteria of development or progress to broader aspects of quality of life. D.M. Smith did much for the progress of welfare geography. जन कल्याणपरक उपागम व वेलफेयर अप्रोच में मानव भूगोल के अध्ययन का नवीनतम उपागम है।
इसके अंतर्गत विभिन्न मानवीय सुविधाओं जैसे इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य सेवाएं व हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्लीनिंग सर्विसेज एक्सेट्रा आदि के वितरण में प्रादेशिक न्याय और प्रादेशिक न्याय अथवा टेरेस्ट्रियल जस्टिस की समीक्षा किया जाता है। सो वेलफेयर अप्रोच में हम इन सभी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन सोशल प्रॉब्लम्स की व्याख्या करते हैं व समीक्षा करते हैं। सिर्फ उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स भी यूज़ करके उसका व्याख्या किया जाता है व उसका सिर्फ क्वांटिटेटिव इश्यूज क्वांटिटेटिव व मात्रात्मक विधियों नहीं, उसके ऊपर जाके भी इसकी व्याख्या किया जा सकता है। सो वेलफेयर अप्रोच व जन कल्याणपरक उपागम एक नवीनतम अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी में। थैंक यू।